A very warm welcome to the class. I really hope that you guys are doing well. Okay, so this is me, Nikki Sinha, and I'm going to be your history teacher for UGC NET. Okay, so कल की क्लास में हमने basically हमारा orientation था. We've taken a look at the syllabus and everything, and in today's class we could start with the first chapter, यानी कि हम lecture 1 से शुरू कर रहे हैं, which is your sources. ठीक है? तो आज हम क्या करेंगे, हम एंशियंट इंडिया के जितने भी सोर्सेज हैं वो डिस्कस करेंगे. ओके गाइस, दीज सोर्सेज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज अगर आपने पेपर्स देखे, इफ यू सीन योर प्रीवियस ईयर्स पेपर, यू नो कि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. दे आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन फैक्ट, इजंट इट? तो इसीलिए आज हम सोर्सेज डिस्कस करेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हम सोर्सेस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोर्सेस? सी, हिस्ट्री इज इनकम्प्लीट unless and until you have your sources, right? Because who tells you, like if I tell you that okay, Akbar was born, Mughals established themselves in 1526, right? So how do you believe me? Because I was not there, neither were you there. So how do you know what I'm saying is the truth? So that is why we have sources. तो अगर हम सोर्सेज को डिफाइन करें तो ये क्या होगा? हिस्टोरिकल सोर्स इज एन ओरिजिनल सोर्स दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. फाइन, तो ये क्या है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स. इट इज एन ओरिजिनल सोर्स विच विल हैव सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. सो ओरिजिनल सोर्स का मतलब क्या होता है? अ सोर्स विच एक्चुअली बिलोंग्स टू द टाइम पीरियड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है? सो अगर हम डिफाइन करना चाहें सोर्स को तो हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? सोर्स कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड एज एनी मटीरियल belonging to the said time period which gives us important historical information. ठीक है? सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन जो है ना वो चेंज इसलिए किया है ताकि इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, लेट्स टेक अ लुक एट दीज टू डेफिनेशंस फर्स्ट. So what are they saying? Historical information, historical source is original source that contains important historical information. These sources are something that inform us about the history at the most basic level and are used as clues in order to study history. So what is a historical source? इसलिए मैंने यहाँ पे एक proper definition लिखा है. It can be defined as any material. Okay, it can be a book, it can be an artifact, it can be an inscription, it can be a coin, कुछ भी हो सकता है. Any material that belongs, okay, it might belong to the set time period that we are talking about. Fine, the time period that we are studying, so it belongs to the set time period. Fine, and it gives us important historical information. Fine. Now, please understand that these historical information that we are getting, these are not proper historical information. In the sense, it will not tell you the entire story. Okay. So, as it is said here, these are basically cues. ये हमें क्या देते हैं? They will give us clues. Alright. So, these sources of history, they will give us what? They will give us clues in order to understand history, and we have to build up on those clues. Okay? ये हमारा काम है कि हम उन clues के ऊपर क्या करें? हम उन clues के ऊपर build up करें. ठीक है? It is our job that we build up on those clues. Okay? So ये हमारा काम है
कि हम उन क्लूज के ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। सो दे विल नॉट टेल यू द एंटायर स्टोरी, नो, historical records will never tell you the entire story, they will just tell you important clues देंगे ये आपको, बस that's it, and the rest of the things you have to do on your own, आपको वो सारी चीजें अपने आप से ही मेकअप करनी होती हैं, ठीक है। so this is what your source is, fine, please take this down, ये बहुत important है, the definition is very important, I will give you time guys, don't worry, ठीक है। अब देखिए गाइस, ये पूरा एक फ्लो चार्ट है जिसमें हमने पूरा सोर्सेस को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सो वी हैव सोर्सेस, वी हैव डिवाइडेड देम इनटू टू बेसिक व्हिच इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अंडर प्राइमरी वी हैव आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। अंडर लिटरेरी वी हैव religious sources and then secular sources. Under religious we have Vedas, Ramayana, Mahabharata, Puran, Dharmashastra, Buddhist literature and Jain literature. सेक्युलर में तमिल संगम, कन्नड़ एंड तेलुगु, बायोग्राफीज ऑफ फॉरेन राइटर्स आएंगे। उसके बाद हम आते हैं न्यूमिस्मैटिक्स पे, इसका पूरा हिस्ट्री में दूंगी आपको। फिर हम आते हैं, सॉरी ये क्या हुआ, हाँ, फिर हम आते हैं एपिग्राफ्स के ऊपर, तो इसमें हम डेटिंग, क्लासिफिकेशन, सोर्स ऑफ हिस्ट्री ये देखेंगे। और सेकेंडरी सोर्स में तो बहुत सारे आएंगे ऑब्वियसली। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम एक्सप्लोरेशन, एक्सकवेशन, टाइप्स, डेटिंग, ये सारी चीजें जो हैं इस पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक आपका आउटलुक है टुवर्ड्स द एंटायर चैप्टर दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन, फाइन। चलिए ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टू मेजर क्लासिफिकेशंस की, व्हिच इज योर प्राइमरी सोर्स एंड देन योर सेकेंडरी सोर्स, ओके। व्हाट इज अ प्राइमरी सोर्स? Primary source is the original source of information that will give us clue regarding the set time period that we are studying, ठीक है। ये क्या है? ये original source of information है, fine. So it is the study of history as an academic discipline. A primary source, also called the original source, is an artifact, document, diary, autobiography which was created during the same time period that we are studying, ठीक है। so primary source क्या है guys? Primary source are original sources, okay, these are what? These are your original sources which will basically help you in understanding the historical time period that you are studying, and they are created in the same time period that we are studying, ठीक है। Original source created in the same time period that we are studying, and it can be any material, कोई भी material हो सकता है, it can be numismatics, coins, epigraphs, inscriptions, anything, but it will be conducted or it will be made in the same time period as the time period that we are studying, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा सेकेंडरी सोर्स? A secondary source is something which is created by someone at a later stage of time using the primary sources, okay? तो secondary sources क्या है? सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब बेसिकली होता है वो सोर्सेज जो कोई और क्रिएट करे, इट इज क्रिएटेड बाय समवन एल्स, ऑलराइट, एट अ लेटर टाइम पीरियड, नॉट एट द टाइम पीरियड दैट वी आर स्टडिंग, ओके, इट इज क्रिएटेड एट अ लेटर टाइम पीरियड यूजिंग द प्राइमरी सोर्सेज, ओके। So जो books लिखी गई हैं, like yesterday only I talked to you about Upinder Singh. So Upinder Singh is a secondary source. Why? Because she is using all the primary sources to conduct her research and to give us a concise information. Fine? So this is what your secondary source is. Okay. Now, so it can summarize, interpret, analyze, or comment on information found in primary sources. और primary sources जो हैं उनको हम archaeological, literary, numismatics, epigraphics इन सब में divide कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे literary sources के बारे में, ठीक है, और इसमें हम religious sources के बारे में बात करेंगे। So we are first going to talk about what? First we are going to talk about literary sources, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं गाइस? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, और इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे
हमारा जो पूरा रिलीजियस सेक्शन है उसको, ठीक है। चलिए, ओके, सो व्हाट इज लिटरेरी सोर्सेस? लिटरेरी सोर्सेस आर एनीथिंग विच इज रिटन डाउन, ठीक है, जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल हो। इट कैन बी लॉन्ग, इट कैन बी शॉर्ट, इट कैन बी अ पोएम, इट कैन बी अ प्ले, इट कैन बी एन एंटायर chronology, or it can be an entire chronicle, but these are what? These are your literary sources, ठीक है। So literary sources क्या होती हैं? It includes all the text which is either long, short, written or oral, fine, and it can be divided. So literary text can be divided on the basis of language. किस भाषा में लिखी गई है, fine. What is the genre? Which category is it talking about? What is the content? What is the tradition, etc. लेकिन main division जो है, it is on the basis of religion and secular sources. तो पहले जितने भी हमारे रिलीजियस सोर्सेज हैं हम उसको कवर करेंगे, देन वी विल मूव अहेड, ठीक है। चलिए, so pehle we are going to cover Vedas. Now here you will find a lot of things guys, so be very careful जो मैं आपको समझा रही हूँ उसको लेकर के, okay? Now what do you mean by Vedas being a part of the Shruti tradition? श्रुति का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि सुनी गई है, something which has been heard, okay? So Vedas actually was a part of the oral tradition, ठीक है। वेदास क्या है? वेदास जो है इट इज अ पार्ट ऑफ योर ओरल ट्रेडिशन, फाइन, विच मीन्स कोई ऐसी चीज जो बोली गई, लोगों ने सुनी, एंड दैट इज हाउ दे हैव रिमेंबर्ड इट, फाइन। सो वेदास का मतलब क्या होता है? वेदास एक्चुअली, द वर्ड वेद मीन्स नॉलेज, ठीक है। वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब होता है नॉलेज, फाइन। और आप सब जानते हैं कि हमारे पास 4 वेद हैं, which is Rigved, Samved, Yajurved, and then we have Atharvaved. All right. Now, each of the 4 Vedas has 4 parts. Okay. यानी कि हर वेद में संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आएंगे, ठीक है। सो आप यहां पे इसको देखिए, इस तरीके से क्लासिफिकेशन आएगा। सो ईच वेद, हाँ, सो ईच वेद आप यहां पे देख सकते हैं कि हर वेद में क्या है, देयर इज गोइंग टू बी, सो ईच वेद इज गोइंग टू हैव 4 पार्ट्स, विच इज संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ठीक है। तो ये हर एक वेद में आपको ये सारी डिविजन्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी, फाइन। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस डिविजन टू यू एंड टेक इट डाउन, आप लोग इसको टेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। वेदास का मतलब क्या होता है गाइस? इट मीन्स नॉलेज, ठीक है। एंड ओके, इट इज पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज पार्ट ऑफ योर श्रुति ट्रेडिशन। और हमारे पास क्या है ना, वी हैव 4 वेदास, ऋग्वेद, साम, यजुर, अथर, ठीक है। और अब आप सब जानते हो कि ये जितने भी वेदास हैं, ईच ऑफ दीज 4 वेदास, ऑलराइट, okay, each of these 4 vedas are further divided into what? They're divided into ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद्स, ठीक है। हमने क्या देखा था, किसमें डिवाइडेड है ये? each of these 4 vedas has संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक एंड उपनिषद, ठीक है। तो अब मैं इसका डेफिनेशन जो है वो आपको समझा रही हूं कि इन सब का क्या मतलब होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्राह्मण, अरण्यक,
ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इन सब का क्या मतलब होता है, ठीक है। चलिए, सो द फर्स्ट डेफिनेशन, सो ये चारों डिवाइडेड हैं। सो द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज ब्राह्मण। ओके, सो ब्राह्मण क्या चीज है गाइज, व्हाट इज दिस डेफिनेशन? सो ब्राह्मण बेसिकली विल हैव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दी सैक्रिफिशियल रिचुअल्स। ओके, तो इसमें क्या होगा, explanation of sacrificial rituals। ओके, सो जितने भी sacrificial rituals हैं इन सब में, वो सब कहां पे एक्सप्लेन होंगे, वो सब आपके ब्राह्मण में एक्सप्लेन होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अरण्यक। अरण्यक इज बेसिकली फॉरेस्ट ट्रिटाइज। ओके, so it is basically composed by those people who have been living in the forest, all right। so देखो, अरण्यक का मतलब क्या होता है, अरण्यक का मतलब ही होता है फॉरेस्ट, all right। नाउ फॉर दोज हु आर अवेयर, जिनको पता है कि जनरली एक इंसान की लाइफ में 4 फेजेस होते हैं, देयर आर 4 आश्रम्स इन अ पर्सन्स लाइफ, राइट। और जो सबसे लास्ट आश्रम है वो संन्यास है, और उसके जस्ट पहले यू हैव वनस्प्रत, व्हिच मींस you stay in the forest away from your family, right? So there are a lot of people who stay in the forest and they compose aranyaks, ठीक है। So this is what aranyaks are। aranyak क्या है? So it is composed by whom? It is composed by the people who are living in the forests, all right? Okay, फिर क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारे उपनिषद्स, ठीक है। तो उपनिषद्स क्या चीज है, व्हाट आर द उपनिषद्स डीलिंग विद? सो उपनिषद्स एक्चुअली they deal with what? They deal with philosophical ideals, ठीक है ना। फिलोसॉफिकल आइडियल्स में एक्चुअली ये किस चीज से डील करते हैं? सो फिलोसॉफिकल आइडियल्स, ये मोस्ट probably or most importantly, not probably, Upanishads are actually dealing with the question of what? They're dealing with the question of Atman and Brahman, fine? Brahman here is the universe and Atman here is your individual soul, fine? So they are dealing with the questions of Atman, which is your individual soul, यानी कि हमारा जो soul है वो, ठीक है। And then they're dealing with Brahman, which is the ultimate reality, जो कि हमारा universe है। तो इन दोनों चीजों से ये डील करते हैं। उपनिषद्स बेसिकली हैज फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस लाइक दिस, कि इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। व्हाट इज योर आत्मन, व्हाट इज ब्रह्मन, इन सब चीजों से डील किया जाता है, ठीक है। ओके, और फिर संहिता क्या है गाइस? संहिता का मतलब होता है किसी चीज को साथ में लेके आना, संहित करना या सम्मिलित करना, ठीक है। सो ऑल द टेक्स्ट दैट वी हैव, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, they are all what? They are compilation of something, ठीक है। So this compilation of the books, that is known as your samhita, ठीक है। तो संहिता क्या चीज है? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट हैज संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक एंड उपनिषद। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं, ठीक है। तो संहितास क्या होते हैं गाइस? सो संहितास आर बेसिकली अ कंपाइलेशन यू कैन से, और जो एंशिएंट टेक्स्ट है हमारे सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इनको ही संहिता कहा जाता है, फाइन। सो संहिता इज व्हाट? संहिता इज लाइक अ कंपाइलेशन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। ऑलराइट, so samhita is like the most ancient layer of the text। जो हमारे टेक्स्ट हैं सामवेद, यजुर्वेद, उसके जो सबसे ओल्डेस्ट लेयर होगा ना, उसको संहिता कहा जाता है, ठीक है।
So what is Samhita? Okay guys, let me explain this. Generally क्या होता है ना, Vedas have evolved, ठीक है? They have evolved over a period of time और इसमें बहुत सारी चीजें ना जो चेंज हुई हैं, ठीक है? बट जो ओल्डेस्ट लेयर है इन टेक्स्ट का, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज योर संहिता, ठीक है? सो क्या हो गया, यहाँ पे हमने जो डेफिनेशंस हैं वो हमने देख ली हैं, ठीक है? सो ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ व्हाट? Rigved consists of hymns, fine. Okay, so I'll just write it down here. ऋग्वेद में क्या मिलेगा आपको? ऋग्वेद में आपको देखने को मिलेंगे hymns, fine. And then what will you find in Yajurved? It has prose and mantras for worship, ठीक है? तो इसमें क्या मिलेगा? Prose मतलब छोटी छोटी कहानियां, ठीक है? And mantra for worship. आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ फ्लो चार्ट ताकि आप लोगों के लिए ये इजी हो जाए और भी ज्यादा, ठीक है? फाइन. सो ऋग्वेद विल हैव हिम्स, यजुर्वेद विल हैव मंत्रास, देन सामवेद विल हैव मेलोडीज एंड चांट्स, ठीक है? सामवेद में क्या है? ठीक है, फाइन. एंड अथर्ववेद इज द storehouse of procedures of everyday life, ठीक है? So अथर्ववेद will tell you about what? It will tell you, it will give you knowledge, मतलब रोजमर्रा के जीवन में, ठीक है? So it will give you information regarding whatever is happening on a daily basis, कि रोजमर्रा के जीवन में क्या चीजें होंगी, उसको हम क्या कहते हैं? That is known as your that will be covered in your Atharvaved. Fine. Things which are happening on a daily basis. Fine. So ये आपका जो है ये डिविजन है. फाइन. ये डिविजन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. फाइन. सो चलिए. Okay. Now, there is one more division that you will see in the Vedas, all right? And that division is of Shakla, all right? Sorry, that division is of Shak and Shukla, okay? So, what is Shak and what is Shukla? Shak का मतलब होता है recensions of the Vedas. That means the books have been revised time and again, ठीक है? तो जो रिविजन्स होती हैं बुक की, उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज योर रिसेंशंस. फाइन. एंड व्हाट इज शुक्ल? शुक्ल इज बेसिकली योर स्कूल ऑफ थॉट. नाउ व्हाट इज अ स्कूल ऑफ थॉट? अ स्कूल ऑफ थॉट इज लाइक एन ओपिनियन दैट यू माइट हैव रिगार्डिंग समथिंग, ठीक है? सो व्हाट इज अ रिसेंशन? तो शाख क्या है? शाख इज योर बेसिकली रिसेंशन, यानी आपका रिविजन जो है टेक्स्ट का, उसको हम शाख बोलेंगे. एंड व्हाट इज शुक्ल? शुक्ल इज योर स्कूल ऑफ थॉट. फाइन. सो यहां पे कि आप देख सकते हैं कि हाँ, सो ऋग्वेद हैज वन रिसेंशन. फाइन. ऋग्वेद में क्या है गाइज? ऋग्वेद का एक रिसेंशन है विच इज योर शक्ल शाख. ऑलराइट. Yajurved has two schools of thought, which is Shukla and Krishna, fine. And the recensions of the Shukla, मतलब इसका जो recension है, इसका जो revision है, वो क्या है? वो है मध्य दीन और कनावा, ठीक है? The Krishna school also includes Kathak, Kapilsthal, Maitrayani and Taittiriya Brahman, ठीक है? और recensions of Samved includes what? काथुनामा, रजनिया, जजमानिया. और अथर्ववेद का क्या है? शौनक एंड पैपलदा. डोंट वरी, अगर आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं ये लिख दूंगी. और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, इट हैज ऑलरेडी बीन गिवन हियर, ठीक है?
ये यहाँ पे ऑलरेडी बहुत क्लियरली गिवन है, मैंने इसलिए इसको पूरा फ्लो चार्ट में ही कर दिया है, ठीक है। सो ऋग्वेद का जो है, फाइन, ऋग्वेद हैज जस्ट वन recension which is your shakal, fine. Then Samved has Shak which is again your recension. Recension का मतलब क्या है guys? Recension का मतलब होता है revision. So Samved has Shak which is revision of the text and that is Kauthuma, Rajniya and then you have Jaiminia, ठीक है। Similarly यजुर्वेद जो है उसमें दो schools of thought हैं which is Shukla and you have Krishna. शुक्ल के अंदर you have further division in the form of Madhyadina and Kanva, and under Krishna you have division of Kathak, Kapilsthala, Maitrayani and Taittiriya, ठीक है। Under Aitareya Brahman you have only two recensions which is Shaunak and Pepalda, ठीक है। So यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई होपफुली सबको अच्छे से क्लियर है। तो शक्ल शाक जो है वो क्या है, रिसेंशन है ऋग्वेद का, वहां पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। नाउ यजुर्वेद हैज टू स्कूल्स ऑफ थॉट, शुक्ल एंड कृष्ण, फाइन। सो यजुर्वेद टू स्कूल्स ऑफ थॉट, शुक्ल एंड कृष्ण, फाइन। और शुक्ल और कृष्ण के अलग से रिसेंशन है। सो शुक्ल का रिसेंशन है मध्यादीना एंड कन्वा, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शुक्ल का रिसेंशन है मध्यादीना एंड कन्वा, और कृष्ण के अंदर आएगा आपका कथक, कपिलस्थला, मैत्रियानी, और ये सब यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये एक और डिविजन है, दिस इज अनदर डिविजन दैट यू मस्ट रिमेंबर इन द वेदास, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने क्या डिविजन देखा है, द डिविजन इज इन द फॉर्म ऑफ शाक एंड शुक्ल। शाक is the recensions in the Vedas, that is your division, मतलब जो रिविजन हुआ है वेदास में, जो रिवाइज किया गया है टेक्स्ट, that is known as your recensions, fine, that is known as your shak. And what is shukla? शुक्ल का मतलब होता है basically it means schools of thought, that is opinions regarding something, ठीक है। तो ये एक अलग से यहाँ पे डिविजन जो है वो मैंने कर दिया है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है। नाउ एक और चीज हम याद रखेंगे कि देयर आर नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री टेक्स्ट विच आर देयर इन द वेदास, जिसको कि वेदांग कहा जाता है। व्हाट इज वेदांग? वेदों के अंग, ठीक है, यानी पार्ट्स ऑफ वेदास। Now, these are very supplementary text. What do you mean by supplementary text? So, knowledge of these texts will help you in understanding the Vedas. This will supplement your understanding of the Vedas. Supplement का मतलब क्या होता है? जो आपको help करेगा आपके main मुद्दे तक पहुंचने में। What is your main agenda? Your main agenda is to study what? The main agenda is to study the Vedas, right? So who's going to help you in studying the Vedas? These supplementary texts will help you in studying the Vedas, ठीक है। जिसमें phonetics आएंगे which is under शिक्षा, meter आएगा which is under छंदा, grammar आएगा, sorry, meter which is under छंद, grammar आएगा under व्याकरण, etymology आएगा under निरुक्त, ritual आएगा कल्प, astronomy under ज्योतिष। Please remember this, ये बहुत important है। This division is very important, fine. So once you have knowledge of phonetics, of meter, of grammar, of etymology, of ritual, of astronomy, once you have knowledge of these supplementary texts, it will become really easy for you to understand the basic concept of Vedas, ठीक है। अब इसके अलावा वेदास में ये डिविजन्स भी हैं गाइस, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेदास हैज डिविजन ऑफ संहिता, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे ऋग्वेद संहिता के अंदर यू हैव अ नंबर ऑफ ब्राह्मण्स ऑल्सो। सो यू हैव ऐतरेय, शंखायना, यू ऑल्सो हैव अयनका, ठीक है। सामवेद हैज दीज ब्राह्मण which is पंचवंशा, शादिविंशा, चंदोग्य, अद्भुत, ऐश्वर्य, उपनिषद, अरण्यक, ठीक है। और अथर्ववेद के अंदर ये सारे ब्राह्मण आएंगे, गोपथ एंड अरण्यक। और यजुर्वेद के अंदर शतपथ ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण,
मैत्रियाना ब्राह्मण एंड अरण्यक ब्राह्मण, ठीक है। तो ब्राह्मण्स के अंदर भी ना फर्दर डिविजन है गाइस, ठीक है। सो देयर आर फर्दर डिविजन्स इवन अंडर ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्राह्मण के अंदर भी आपको फर्दर डिविजन देखने को मिलेगा। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, ठीक है। सो व्हाट डू यू हैव हियर, यू हैव वेदास एंड यू हैव डिविजन। सो ब्राह्मण, ठीक है, ईच ऑफ दीज 4 वेदास हैज व्हाट, ईच ऑफ दीज 4 वेदास हैज अ ब्राह्मण, ठीक है। सो ये जो ब्राह्मण है इसके अंदर भी बहुत सारी बुक्स हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, यू हैव डिफरेंट नेम्स ऑफ बुक्स जो मैंने वहां पे फ्लो चार्ट में दे रखा है, ठीक है। तो देखो गाइस, एक बार हम समराइज करके देखते हैं वेदास में किस किस चीज का डिविजन है। पहला डिविजन जो हमने पढ़ा था वो है हमारे 4 वेदों का, ठीक है, फाइन। उसके बाद द 4 वेदास आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद एंड संहिता, ठीक है। Then, other than this, the 4 Vedas are further divided into Shak and Shukla. Shak is your recension, Shukla is your school of thought, fine. And further you have division of what? Further you have division of Vedang, ठीक है। तो ये क्या है गाइज, ये आपके डिविजन है वेदास के, फाइन। सो एक बार हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इन द बिगिनिंग ओनली लेट अस राइट दिस डाउन। सो वेदास जो है उसके कितने डिवीजन हैं, ठीक है। पहला डिवीजन है 4 वेदास, ठीक है। 4 वेदास आर डिवाइडेड इनटू संहिता, अरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, ठीक है, ओके। इसके बाद डिवीजन किसका है, शाक एंड शुक्ल, ठीक है, ये डिवीजन है नेक्स्ट। और लास्ट डिवीजन जो हमने देखा वो किसका था, वो था वेदांग का, ठीक है। तो ये डिविजन्स जो है वो हम याद रखेंगे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू 5 मिनट्स टू टेक दिस डाउन। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो आपका स्कूल ऑफ थॉट है ये, और ये वाला जो पोर्शन है इसको टेक डाउन कर लीजिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। सो जस्ट प्लीज टेक इट डाउन, फटाफट से टेक डाउन कर लीजिए, देन आई विल जस्ट समराइज इट फॉर यू, ठीक है, ओके। गाइस अगर ये टेक डाउन नहीं कर पाए हैं तो बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, फिलहाल जस्ट टेक दिस डाउन, ठीक है। और हाँ, फिलहाल जस्ट टेक दिस डाउन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गाइस आई एम गिविंग यू टाइम, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो, मान लो जस्ट इन केस यू नॉट एबल टू डू इट इन द क्लास, यू कैन ऑलवेज डू इट विद द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, you can take it down later, ठीक है। Alright guys, so I'm sure we're done with this, so let me just summarize this for you. So what we've seen is our first religious literary source, which is your Vedas, ठीक है, and we saw that it has around 4 divisions. पहला division जो है वो बहुत simple है, which is your basic division of अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। Then further they are divided into what? Aranyak, Brahman, Upanishad and Samhita, fine. Further उनमें क्या division है, शाक की और शुक्ल की, ठीक है। शाक इज योर रिसेंशन एंड शुक्ल इज योर स्कूल ऑफ थॉट, फाइन। और उसके जो फर्दर डिविजन्स है वो मैंने आपको फ्लो चार्ट में बता दी है। देन फर्दर वी हैव डिवीजन ऑफ वेदांस, ओके। तो ये क्या था आपका, दिस इज ऑल अबाउट योर वेदास, ऑलराइट। नाउ नाउ वी मूव ऑन टू रामायण एंड महाभारत, फाइन। चलिए, सो अगर हम बात कर रहे हैं रामायण और महाभारत की, first of all we have to understand that Ramayan जो है is, if you talk about the tradition of Ramayan, okay, so let me just summarize it for you in the form of a flow chart, ठीक है। so रामायण की अगर हम tradition की बात करें, sorry, so if we talk about which tradition does Ramayan belong to, so Ramayan basically belongs to the Shruti tradition, sorry, no, it belongs to what, it belongs to the Smriti tradition, ठीक है। स्मृति का मतलब क्या होता है, स्मृति का मतलब होता है समथिंग विच इज रिमेम्बर्ड, है ना, कोई ऐसी चीज जो सदियों से चली आ रही है बट यू हैव
you remember it, आप उसको याद करके रखते हो, ठीक है. So that is what Ramayana is. Ramayana is a part of what? It is a part of Smriti tradition, ठीक है. Okay, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, so it is from 4th to 5th century BCE to 3rd century CE, ठीक है. So time period 4th to 5th century BCE to 3rd century CE, ठीक है. एंड आई नो मुझे आपसे सवाल तो नहीं करना चाहिए बिकॉज आई एम श्योर यू नो दिस, बट हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी कि वाई BC के डेट्स जो है वो उल्टे चलते हैं, ठीक है. वाई डू दे गो इन डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, बड़े से छोटे क्यों जाते हैं, छोटे से बड़े क्यों नहीं जाते, उल्टे क्यों चलते हैं, और C के जो डेट्स हैं वो सीधे क्यों चलते हैं. दोज हू डोंट नो प्लीज डोंट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग, जरूर पूछ लीजिएगा कि मैम ऐसा क्यों होता है, ठीक है. अगर हम लोकेशन की बात करें, सो विच इज द एरिया विच इट इज डिपिक्टिंग, इट इज बेसिकली डिपिक्टिंग द मिडिल गंगा वैली, फाइन. ओके, मैं इसलिए ऐसे लिख रही हूँ गाइस ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं, ताकि everything should be in the form of flow chart. Okay, so location is middle Ganga valley, fine. Who's the writer? ठीक है, writer is very simple, it is Valmiki. ऑलराइट, ठीक है. तो ये क्या हो गया, ये आपकी राइटर्स हो गए, फाइन. अब इसमें ना रिसेंशंस है. रिसेंशंस क्या होती है गाइस, रिविजन है, फाइन. सो यू हैव द नॉर्दर्न रिविजन, फाइन, एंड यू हैव द सदर्न रिविजन. ओके, सो what do you have here? You have recension, ठीक है. रिसेंशन जो है वो फर्दर डिवाइडेड है किसमें, सो यू हैव नॉर्दर्न रिविजन एंड यू हैव योर सदर्न रिविजन, ठीक है. सदर्न रिविजन है और नॉर्दर्न रिविजन है, यानी कि रिसेंशंस है एक तरीके से गाइस, ठीक है. सो टू मेन रिसेंशन इंक्लूड नॉर्दर्न एंड सदर्न. नॉर्दर्न इज फर्दर डिवाइडेड इनटू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट, ठीक है. सो किसमें डिवाइडेड है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ऑलराइट, एंड वी हैव वेस्टर्न. ओके, सो ये इसके फर्दर डिविजन्स हैं. ओके, और यहाँ पे ना द बुक इज डिवाइडेड इनटू 7 बुक्स, और इसको हम 7 कांड भी बोलते हैं, ठीक है. उत्तरकांड है, बाल कांड है, अरण्य कांड है, तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि आपका वो लंका का कांड है, रावण कांड है. सो व्हाट डू यू हैव हियर, सो यू हैव डिफरेंट कांड, ठीक है, यानी कि डिफरेंट बुक्स हैं यहाँ पे. ओके, सो ये आपका पूरा रामायण का हो गया. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ वी हैव महाभारत. ओके, सो हम इसमें भी सेम चीज करेंगे, इसमें भी हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं. ठीक है, सो महाभारत में भी हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना लेंगे. अगेन ट्रेडिशन क्या है, इट इज योर पार्ट ऑफ योर स्मृति ट्रेडिशन, ठीक है. टाइम पीरियड 400 BCE to 400 CE, यही है ना टाइम पीरियड. हाँ, ठीक है. ओके, लोकेशन की बात कर लेते हैं. सो इसका लोकेशन भी जो है वो सिमिलर है. इट इज द मिडिल, इट इज बेसिकली द अपर गंगा वैली, ठीक है. सो सॉरी, लोकेशन location is what, location is your upper Ganga valley, ठीक है.
ऑथर तो गाइज आप लोग जानते ही हैं, इट इज वेद व्यास. फाइन. ठीक है. ऑथर कौन है? ऑथर जो है वो वेद व्यास है. रिसेंशंस इनमें दो ही हैं, नॉर्दर्न एंड सदर्न. ठीक है. फाइन. सो ये हम याद रखेंगे. recension is how much? recension is northern and southern. तो इसमें ना अलग से कुछ डिविजन नहीं है in northern and southern, and here just like you have your कांड in रामायण, you have पर्व in महाभारत, और यहाँ पे कितने हैं? there are 18 पर्व in महाभारत. ठीक है. so what are पर्व? पर्व is basically your बुक्स. ठीक है. आदि पर्व, इस तरह से पर्व होते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे ये डिविजन है. फाइन. होपफुली एवरीवन इज ओके टिल हियर. ऑलराइट. अब हम आते हैं पुराण के ऊपर. ओके. दिस इज अनदर वन ऑफ आवर वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस सोर्सेस. ओके. तो चलिए हम बात कर लेते हैं पुराण के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट पुराण. सो लिटरल मीनिंग क्या है? पुराण का मतलब क्या होता है? पुराना, यानी कि ओल्ड, समथिंग विच इज ओल्ड. फाइन. सो यहाँ पे भी मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दे रही हूं ताकि आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी. ठीक है. सो पुराण लिटरल मीनिंग क्या है गाइस? लिटरल मीनिंग इज ओल्ड. ठीक है. सो यू नो ऑथर ऑफ पुराण, who is considered to be the author of Puran? So generally माना जाता है कि it is व्यास only who is considered to be the author of Puran. जैसे कि यहाँ पे ने लिखा हुआ है believed to have been composed by व्यास. ठीक है. So ये जरूर याद रखिएगा कि व्यास को ऐसा हम बिलीव करते हैं. वी डोंट एग्जैक्ट हैव प्रूफ्स, हमारे पास एग्जैक्ट प्रूफ्स नहीं है एज टू व्हाट इट वाज. ठीक है. एंड देन अगर हम डिविजन की बात करें, so we have 18 Mahapuran and then we also have Up-Puran. Okay, so let's talk about the division here. So हम डिविजन की बात करेंगे, so what do we have? We have 18 Mahapuran, all right, and then we have Up-Puran, है ना. तो ये क्या है आपका? This is your division. This is the division which is there in Puran, which is your Mahapuran, which is 18 in number, and then you have Up-Puran. Fine. Now इसमें basically ना 5 टॉपिक्स हैं जो कवर की जाती हैं. ठीक है. हाँ. So इसमें जो 5 टॉपिक्स हैं वो कवर की जाती है ना. Before I move on to that, let me tell you what Mahapuran is and why has the name been given so well. So Mahapuran is something which is very well known, जो बहुत अच्छे से जाना जाए, जिनकी स्टोरीज बहुत पॉपुलर हैं. फाइन. So that is what your Mahapuran is. All right. So Mahapuran is what it is. Very well known books. ठीक है. जिनकी स्टोरीज हमें बहुत अच्छे से पता हो, जिनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता हो, दैट इज योर महापुराण. ठीक है. उपपुराण क्या है? उपपुराण एक्चुअली कॉमेंट्रीज ऑन पुराण. फाइन. व्हाट आर दीज? दीज आर योर कॉमेंट्रीज ऑन पुराण. Okay, what do you mean by commentaries on Puran? So these are basically commentaries which have been done on Puran ताकि लोगों को easily समझ में आए. So people can understand Puran easily, है ना, ताकि उनको अच्छे से समझ में आए, इसलिए उसको कहा गया है क्या? कॉमेंट्री. कॉमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉमेंट्री का मतलब होता है किसी चीज को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना. So Puran in itself is actually quite difficult to understand.
So what do they have here? They have Up Puran, which has made commentaries. Now, if you read these commentaries, it will be easier for you to understand Puran. ठीक है? अब इसमें जो है ना, बेसिकली 5 टॉपिक है जिसके बारे में ये बहुत डिटेल में बात करते हैं. So there are 5 topics which are actually covered in the Purans. Fine. What are these 5 topics? Let's talk about them. So first of all, you have creation of world, which is Sarg, and then you have recreation, which is Pratisarg. What do you have first one? You have creation of world, which is Sarg. Then what do you have? You have recreation. जब दोबारा दुनिया खत्म होके बदले दोबारा बने तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रतिसर्ग. ठीक है, फाइन. इसके अलावा क्या टॉपिक्स हैं? इसके अलावा यू बेसिकली हैव द पीरियड ऑफ मनु. मनु कौन थे? सो मनु वाज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग. सी गाइस, एवरी रिलीजन हैज एन एवोल्यूशन स्टोरी, राइट? So in Hinduism also we have an evolution story, which is that of the Manu. So Manu is the first Manushya, पहला human being है वो. ठीक है? So the period of Manus is Manvantras. ठीक है? What do we have? Okay. So what do we have here? Period of Manu, which is Manvantras. Then you have genealogies of gods and rishis. ठीक है? तो जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी भगवान हैं, उन सब की जीनियोलॉजी है. जीनियोलॉजी मतलब उनका पूरा फैमिली हिस्ट्री दिया हुआ है. दैट विल कम अंडर योर वंश. फाइन. एंड लास्टली दे हैव गिवन अस डिटेल्स रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द रॉयल डायनेस्टीज एज वेल. ठीक है? सो रॉयल डायनेस्टीज जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, इनफैक्ट उनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. फाइन. जैसे कि Puranas will provide you information regarding the Nand dynasty, the Mauryan dynasty, Shung and Kanva, and the list of the royal dynasties actually ends with the Guptas, indicating that Puranas would have been compiled during this time period. ठीक है? So जो list है dynasty की वो Guptas पे आके end हो जाती है. So that is why we assume that maybe it was compiled during this time period. Okay? चलिए. Okay. So guys, quickly take this down. आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगना चाहिए. रामायण, महाभारत और पुराण फटाफट से टेक डाउन कर लीजिए. फिर we will move on to the धर्मशास्त्रास. Alright? चलो, quickly. So I'm sure we're done with this. अब हम चलते हैं हमारे next important text की तरफ, and that is your धर्मशास्त्रास. Okay? अब इसमें भी काफी सारे divisions हैं, तो इसको भी मैं I'll make sure कि मैं flow chart में कर दूं. ठीक है? So basically धर्मशास्त्र का मतलब क्या होता है? धर्म के शास्त्र से अगर कोई डील करे, ठीक है? So it basically deals with dharma. Now dharma here does not mean your religion. Fine? Dharma here means your duties. ठीक है? Fine? So now, as you can see, it is divided into 3 groups, okay? और जो पहले 2 हैं उनको धर्म सूत्र, हाँ, जो पहले 2 groups हैं, they are known as your धर्म सूत्रास, fine? And the third one is known as your स्मृति, ठीक है? The third book also includes commentaries, which is tikkas and bhashyas, and it also includes conclusion, which is योर निबंध. ठीक है? तो चलिए मैं इसको फ्लो चार्ट में कर देती हूं, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको समझना. ठीक है? धर्मशास्त्र. ठीक है? ऑलराइट. सो what is the first thing that we must remember? The first thing that we must remember is the language of the book. ठीक है? So you all know the language is Sanskrit. ठीक है? What does it deal with? You know, it deals with dharma, which is your duties. ठीक है? अब इसकी अगर हम बात करें groupings की, ठीक है?
So what is, let's talk about the group. So it is divided into 3 groups, right? So the first one is known as what? Dharma Sutra, ठीक है? And the third one, ये क्या है? ये पहला 2 है, fine? जो third one है, the third one, that is known as your Smriti, ठीक है? Fine? And you can see here that the third one, the third book, which is Smriti, is further divided into टिक्काज and भाष्याज and निबंध, ठीक है? So हम यहाँ पे क्या देखेंगे? It is further divided into what? टिक्काज and भाष्यास, ठीक है? और इसका दूसरा डिवीजन क्या है? दूसरा डिवीजन इज निबंध, ऑलराइट? नाउ व्हाट आर टिक्कास एंड भाष्यास? दे आर बेसिकली कमेंट्रीज, ठीक है? सो कमेंट्रीज का मतलब तो आप जानते ही हैं कि व्हाट आर कमेंट्रीज? कमेंट्रीज आर बेसिकली मेड सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू रीड द टेक्स्ट, है ना? आप उस पर कॉमेंट करते हो, टिप्पणी करते हो, so that the text becomes easier for you to read, ठीक है? और निबंध क्या है? निबंध is basically the conclusion, fine? So it will tell you कि हाँ finally conclusion क्या है किसी चीज का, ठीक है? कि ये हमने पढ़ा, this is what we have understood, like I summarize things for you, that is what we are talking about, ठीक है? तो ये हो गई क्या? ये हो गई हमारी groupings, fine? Now Griha Sutra, fine, is an important part of धर्म सूत्र. तो धर्म सूत्र के ही important part हैं. So let me just move further. Okay. So धर्म सूत्र के अंदर क्या आएगा? Under धर्म सूत्र you have a book called गृह सूत्र. Now as the name suggests, गृह का मतलब क्या होता है? घर, ठीक है? It means house. So under Griha Sutra, you basically have mention of what? You basically have mention of the Upanayana ceremony, ठीक है? इसके अंदर आपको किसका mention मिलेगा? उपनयन, ठीक है? विवाह, and then you will find the mention of Antyeshti. Okay, now what does this mean? उपनयन is your thread ceremony, जिसको हम जनेऊ सेरेमनी भी बोलते हैं, ठीक है? फाइन. सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर थ्रेड सेरेमनी, ओके? विवाह तो आप लोग सब जानते ही हैं, दैट इज योर मैरिज. एंड अंत्येष्टि बेसिकली मीन्स व्हाट? इट मीन्स योर फ्यूनरल, ऑलराइट? कि आपका जब फ्यूनरल होगा, यानी कि आपकी जब डेथ होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज योर अंत्येष्टि, ठीक है? फाइन. नाउ धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्र will also tell you about what? It will also tell you about the 4 ashrams and varna, ठीक है? So यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? We will talk about the ashrams, fine? So ashrams में क्या क्या आएगा, ठीक है? Ashrams में you have ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनस्प्रथा, ठीक है? Let me just write this down. ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, then you have संन्यास, ठीक है? मैं एक्सप्लेन कर देती हूं आपको ब्रह्मचर्य क्या होता है. सो ब्रह्मचर्य इज बेसिकली दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जस्ट सेकंड गाइस, एक सेकंड रुक जाना. ओके. Yes. So I was telling you about brahmacharya. So
ब्रह्मचर्य क्या चीज है गाइस? दिस इज बेसिकली योर चाइल्डहुड, ठीक है, where you are in your school, you are a pupil, you're a student, your sole responsibility is to live with your teacher, your guru, you live in his gurukul, you learn things, and this is the time period when you don't think about marriage or anything like that. You're just a student, you are learning your trade, you are learning everything, fine. Then you have grihast ashram. Grihast is when you become a householder. So you get married, you have children, you have to earn for your family, you have to look after your family. Then once you are free with all of your responsibilities, you move ahead to the one, which is you start staying in the forest. Now this is like a transition period from grihast to sannyas. So see guys, you can't just, just at one go take sannyas. That is not possible. You will find it really difficult to take sannyas in just one go. So what do? You basically first of all, go and stay in the forest, all right? You get yourself used to. आप थोड़ा सा अपने आप को used to करते हो किस चीज के लिए? थोड़ा सा अपने आप को used to करते हो for the fact that okay, you are going to stay away from your family, fine? And when you eventually gotten used to it, then you move on to what? Then you move on to your last one, which is your sannyas, where you have renounced everything. जहाँ पे आपने सब कुछ रिनाउंस कर दिया है. यू हैव रिनाउंस्ड योर फैमिली, योर प्रॉपर्टी, योर वर्ल्ड, एवरीथिंग. सो आप एक रिनाउंसर, एक सन्यासी की तरह जीवन जीते हो, ठीक है. और वन तो मुझे आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है. यू ऑलरेडी नो व्हाट वन इज, ठीक है. ओके. ओके गाइज, अब इसके बाद जो है वी ऑल्सो हैव बुद्धिस्ट लिटरेचर, जिसमें बहुत सारे आएंगे, ठीक है. वी हैव दिस, सो आई टेल यू ऑल अबाउट इट, डोंट वरी. तो पहले जो है ना, आप इसको फटाफट से टेक डाउन कर लीजिए, देन वी विल मूव ऑन टू द बुद्धिस्ट लिटरेचर. Quickly take it down, then we'll move on to the Buddhist literature. Okay, I'm sure this is done. Now, we move on to Buddhist literature. ठीक है, चलिए. Okay. So guys, अब अगर हम Buddhist literature पे चलेंगे, so it is divided into what? It is divided into canonical and non-canonical. ठीक है. So canonical और non-canonical में difference क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं. Canonical का मतलब क्या होता है? Canonical basically means something which tells you about the rules and regulations. ठीक है. Canons are something, canons are books जो आपको क्या बताएंगे? जो आपको बताएंगे rules and regulations of something. Fine. So what are canons? Canons are those books which will tell you about the rules and regulations of something. Fine. Then what do you have? Then you have non-canonical. Non-canonical क्या होती है? Non-canonical are books which are in general. They can be stories, they can be prose, poetry, etc. They can be philosophical as well. But they will not tell you about the rules and regulations. Fine. तो अगर हम divide करें, ठीक है? So let us move to the flowchart here. So if we have to divide it, so you can see under canonical, you have Sut Pitak, Vinay Pitak, Abhidham Pitak, ठीक है, and then you have the Nikayas, ठीक है, fine. और निकायास में भी आप देख सकते हो कि दीघ निकाया, महाजिम्या, then you have Samyata, then you have Anguta, then you have Khudaka, etc. ठीक है. सो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इस तरीके से यू गोइंग टू फाइंड डिविजन्स लाइक दिस. और मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कौन कौन सा निकाय जो है वो क्या है, ठीक है, फाइन. सो यू कैन सी हियर दैट द nikayas are there. Okay, all right, let me just tell you. So Sut Pitak will have what? So Sut Pitak basically will have the teachings of Buddha. Okay, Sut Pitak के अंदर आपको क्या मिलेगा? सूत पिताक के अंदर आपको मिलेगा टीचिंग्स ऑफ बुद्धा.
ठीक है, फाइन. What will you find in Vinay Pitak? In Vinay Pitak, you are basically going to find the rules and regulations. ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर whom? एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे बहुत अजीब लग रहा है ये, मैं ना इसको अलग से लिख देती हूँ. ठीक है, सो यू हैव द कैनोनिकल टेक्स्ट. ठीक है, इसमें 3 मेन बुक्स हैं हमारी. फाइन. सो व्हाट डू यू हैव? यू हैव सूत पिताक. ऑलराइट, so what is Sut Pitak, guys? It has the teachings of Buddha. Fine. Okay. Then what do you have after Sut Pitak? What do you have? Then you have, sorry, then you have Vinay Pitak. Vinay Pitak has what? It has rules and regulations for monks. ठीक है, जो कि संघ में रह रहे हैं, तो संघ के रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, you're going to find here. Fine. And then finally you have Abhidham Pitak. So it talks about what? Abhidham Pitak talks about the philosophy of Buddhism. Fine. So Abhidham Pitak में क्या है? It has the philosophy of Buddhism. ठीक है? So now, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है that पिताक is further divided into निकायास. ठीक है, सो पिताक जो है, it is further divided into what? पिताक is further divided into निकायास. ठीक है, and under निकायास you have दीघ निकाया, महाजम्मा, संहिता, अंगुत्तरा, खुदका. अब इनसे इनमें क्या है वो मैं आपको बताऊंगी अच्छे से डिटेल में. ठीक है, ओके. Now, and then under non-canonical text, what do we have? Under non-canonical, these are what? These are text which will not tell you about the rules and regulations. ठीक है? So, इसमें क्या है? इसमें we have मिलिंदा पन्हा, we have नेति पकड़ना, निदान कथा, दीप वंश और महावंश. Alright? So, what are these? These are your non-canonical text. Now, there's also some Sanskrit literature here which became stronger with the coming in of Mahayana Buddhism. इसके बारे में भी हम जानेंगे when we actually do Buddhism. Fine. So संस्कृत लिटरेचर में क्या आएगा? You have महावस्तु, ललित विस्तारा. ठीक है, you also have अश्वघोषा's बुद्धा चरिता. Alright, you have दिव्यदान. So these are what? These are your संस्कृत literature. ठीक है, ये किसका पार्ट है? ये आपके संस्कृत लिटरेचर का पार्ट है. ओके, एक सेकेंड. हाँ, so these are part of your संस्कृत लिटरेचर. फाइन. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस? सबसे पहले देखिए, मैंने आपको जो कैनोनिकल टेक्स्ट है, मैंने उसके बारे में आपको सूत पिताक, विनय पिताक, अभिधम बता दिया है. ठीक है, अब हम एक काम करते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेजर डिविजन which is your non-canonical text. ठीक है, तो non-canonical text के अंदर आप देख सकते हैं you have मिलिंदा पन्हा, you have नीति पकड़ना, निदान कथा, दीपवंश, महावंश. Okay, so I'm going to give you details regarding that now. ठीक है, अब उसके रिगार्डिंग जो है मैं आपको डिटेल्स दे रही हूँ. निकायास के रिगार्डिंग अलग से डिटेल्स दूंगी. ठीक है, यहाँ फिट आएगा नहीं आएगा? ओके गाइस, सॉरी, यहाँ फिट नहीं आएगा तो मैं अलग से लिख रही हूँ उसको. ठीक है, सो all right, so the first non-canonical text that we have is
ओके, तो सबसे पहला नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट कौन सा है? इट इज कॉल्ड मिलिंदा पन्हा और मिलिंदा पन्हो. फाइन. सो द डेट इज अराउंड था 100 BC to 200 AD. ठीक है. सो व्हाट डू वी हैव हियर? डेट. यहाँ पे ना मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे रही हूँ सारे बुक्स के रिगार्डिंग विच यू शुड नो. ठीक है. देन what is this book basically about? So this is like a dialogue which was going on between the Indo-Greek king Meander and the Buddhist sage Nagsen. ठीक है. So what is this? Dialogue between Indo-Greek king Meander and whom? ठीक है. And Buddhist sage Nagsen. ठीक है. तो इन दोनों के बीच में basically there's a conversation going on, and Milinda or Meander is basically asking him all sorts of questions that has been recorded in the form of Milinda Panho. ठीक है. Then what do you have? Then you have Neti Pakadna. ठीक है. All right. Next, what is the book that we have? Okay. So नेति पकड़ना जो है वो क्या है? So नेति पकड़ना is actually part of the Khuddaka Nikaya. I'll tell you what that is. ठीक है. And it is basically, there are a lot of scholars regarding Buddhism, and scholars are disagreeing on things, isn't it? See, not every scholar is going to agree on all the principles of Buddhism, right? So basically, it is a matter of disagreement. So these disagreements are being discussed amongst the Buddhist scholars, all right? This debate is happening among the Buddhist scholars, which has been recorded here in the Neti Pakadna. Okay, fine. And it also tells us about the methods which has been taught by Buddha's disciples, Katyayana. Okay. So what is this all about? Sorry. Part of. And ठीक है. So जो Buddhist scholars हैं, they are disagreeing amongst each other. Fine. There is a debate which is going on, और उस debate में ये लोग सब participate कर रहे हैं और वो पूरा debate जो है उसमें mention है. Fine. Then it also talks about the methods taught by the Buddhist disciple Katyayana. ठीक है. सो इनके बारे में यहाँ पे हमें बताया जा रहा है. ठीक है. सो दिस इज योर नीति पकड़ना. फाइन. देन व्हाट डू वी हैव? देन वी बेसिकली हैव निदान कथा. ठीक है. ओके. उसके बाद क्या है? निदान कथा है. सो फाइन. लेट्स टॉक अबाउट निदान कथा नाउ. दैट इज योर नेक्स्ट बुक. प्लीज ये सब टेक डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. ऑलराइट.
सो निदान कथा क्या है गाइस? निदान कथा इज बेसिकली एन इंट्रोडक्शन टू जातक्स, ठीक है। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? यू विल सी स्टोरीज रिगार्डिंग बुद्धा's लाइफ, ओके। So first of all, what is it? It is introduction to your Jataks, all right. Okay. You will see stories regarding बुद्धा's लाइफ, ठीक है। तो बुद्धा की जो लाइफ है उनकी स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे यू विल फाइंड स्टोरीज रिगार्डिंग हिज बर्थ, एनलाइटनमेंट एंड निर्वाण, फाइन। So you will find the stories divided in 3 sections. So you will find stories which are related to Buddha's life, and these stories are related to these aspects of his life. So it will be about his birth, his enlightenment and his nirvana, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा? birth, enlightenment, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? Then you will have nirvana, fine. So these are what? These are the aspect of Buddha's life which has been covered here in Nidan Katha, okay. Then what do we have? Then we have Deepvamsh and Mahavamsh, ठीक है। So ये Deepvamsh और Mahavamsh simple है, मैं यहीं पे साइड में लिख रही हूँ guys. So what is Deepvamsh? वंश का मतलब होता है जीनियोलॉजी, फाइन। सो इट इज बेसिकली, दीप वंश का मतलब होता है क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड। विच आइलैंड आर दे टॉकिंग अबाउट? दे टॉकिंग अबाउट श्रीलंका, फाइन। सो दीप वंश का मतलब क्या है? इट इज क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड, फाइन। विच आइलैंड आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीलंका, ठीक है। फिर कौन सा है? देन वी हैव महावंश, ठीक है। महावंश इज व्हाट? महावंश इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, इट इज जस्ट दैट इट इज अ ग्रेट क्रॉनिकल, महा, ठीक है। सो क्रॉनिकल सेम है, क्रॉनिकल में ऑब्वियसली मैटर वुड बी डिफरेंट, but the location is same. They're still talking about Sri Lanka only, but it is what? It is a great chronicle of Sri Lanka, ठीक है। So what is महावंश? महावंश का मतलब होता है ग्रेट क्रॉनिकल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज ऑल अबाउट, फाइन। तो यहां पे ना गाइस हमने अभी सिर्फ एक सेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो कवर किया है। वी हैव कवर्ड द नॉन कैनोनिकल वंस एंटायरली। आई हैव गिवन यू डिटेल्स रिगार्डिंग मिलिंदा पन्हा, नेति पकड़ना, निदान कथा, दीपवंश एंड महावंश. Then I have given you details regarding Sut Pitak, Vinay Pitak and Abhidam Pitak, ठीक है। So next class में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी regarding your निकायास, ठीक है। दीघ निकाया, महाजम्या, सम्यता, अंगुत्रा, खुदका, इन सब के बारे में आपको जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। Okay, so all right, so we have covered quite a lot today. We have covered what are sources, ठीक है। Then we have covered most of our religious sources. तो देखो हमने most of the cover कर ही लिए हैं. Like for example, we have covered Vedas, रामायण, महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्र, Buddhist literature भी चल रहा है. Then we have Jain literature to cover. That I think we will be able to take up tomorrow itself, because अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. So I don't think we will be able to continue today, ठीक है। So we have covered quite a lot guys. We have covered what are sources, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सोर्सेज देखे, फिर हमने पूरा सोर्सेज को डिवाइड किया है. दिस इज द एक्चुअल डिविजन ऑफ द सोर्सेज, फाइन। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने लिटरेरी सोर्सेज पे फोकस किया, एंड देन वी फोकस्ड ऑन द रिलीजियस सोर्सेज, जिसमें मैंने आपको वेदास बताए. वेदास में आई टोल्ड यू अबाउट द 4 डिविजन्स व्हिच आर देयर इन वेदास. सो वन यू हैव इज द ऑफ द 4 वेदास.
Then the 4 Vedas are divided into Samhita, Aranyak, Upanishad, Brahman. Then I told you about Shak and Shukla division, which is recension and school of thought. Then I told you about Vedang, which is parts of Veda. ठीक है? Vedas किए हमने, फिर हमने क्या किया? Then I gave you details regarding Ramayana and Mahabharat. Very simple, बहुत difficult नहीं था ये. Then I gave you details about Puranas. Alright, these are the 5 topics which are covered in Puranas, which Puranas talk about. Now, after this, we have covered with Dharma Shastras and Sutras. We covered the language. We covered the group of text. Alright. फिर हमने धर्म सूत्रास के बारे में बात किया, जिसमें गृह सूत्र है, उपायन थेरेमनी है, विवाह है, अंत्येष्टि है, ये सब मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है. ठीक है. एंड देन लास्टली वी हैव कवर्ड बुद्धिस्ट लिटरेचर, जिसमें हमने कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल मोस्टली कवर कर लिया है. व्हाट इज लेफ्ट विथ इज द निकायास, व्हिच वी विल टेक अप इन टुमारोज लेक्चर. ठीक है. चलिए. So, alright guys, this is it from my side today. We will move ahead in tomorrow's lecture. कल के लेक्चर में हम इसके आगे बढ़ेंगे. फिर हम जैन लिटरेचर भी करेंगे, कन्नड़ लिटरेचर करेंगे, तमिल लिटरेचर करेंगे, और बहुत सारी हैं जो हमें कवर करनी है. फाइन. So, that's it from my side today. So guys, this was our very first lecture. Okay. Now, we don't have the tabs right now, but very soon हमारे पास tabs होंगे. So we will have our live chat. So just in case you have doubts, तो आप मुझसे उसी टाइम पे पूछ सकते हो. You can ask then and there itself. ठीक है? Now, since this is our very first class, we're still establishing our basis. Okay? So just in case आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 2-3 चीजें मैं point out कर दे रही हूँ कि जैसे कुछ चीजें मैं अज्यूम करके चलती हूँ कि आपको पता होंगी, because you have done them in your junior classes, in your graduation, etc. Fine. Just in case you don't understand any of it, ऐसा जरूरी नहीं कि हमें सब कुछ याद रहे. बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं. So if you don't understand any of it, let me know कि मैम हमें ये बेसिक जो है हमारा नहीं याद है, या हमने नहीं किया है, या हम भूल गए हैं. सिंपल सी बात है. Even if you've forgotten, that doesn't matter. So if you've forgotten, just let me know कि मैम हमें ये नहीं याद, तो आप हमें प्लीज ये एक्सप्लेन कर दीजिए. सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन इट टू यू. मुझे कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट इन केस यू नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम माय साइड, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए आपको, कोई फ्लो चार्ट, कोई डायग्राम, कोई नोट्स, कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो. ठीक है. ये जो भी मैंने लिखा है, आई विल ट्राई टू गिव यू टाइम इन द क्लास टू राइट इट डाउन. इफ नॉट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज वॉच द रिकॉर्डिंग्स एंड टेक इट डाउन. ठीक है. और lastly, since this was our first lecture, I don't have the tab with me, so मैं एक paste जो है वो establish नहीं कर पाई आपके साथ. So just in case you have any suggestions regarding the teaching कि मैम हमें ऐसे नहीं ऐसे better समझ में आ रहा है, या आप ऐसे नहीं ऐसे बता दो, या ये हमें समझ नहीं आया तरीका, आप इस तरीके से समझा दो. So if you have any suggestions regarding teaching which you think will make you understand whatever I'm teaching better, please feel free to let me know. I will be more than happy to accommodate it for you. मेरा मेन एम यही है कि आपको चीजें समझ आनी चाहिए. That's it. ठीक है? All right. So thank you so much guys for joining me here. It was an absolute pleasure to have you all. I will now see you in the next lecture. Till then, please take care. Thank you. Bye-bye.